Hello, good morning, friends. Welcome to part 2 of May 2023 FR exam paper. In the first part, we have seen 3 questions. I hope you have noted down the answer, or if you want the answer, what you do, you download our app, Vino app. So please download Vino app where you will find these answers and you can study from that. And those who have appeared for the exam can check. This Vino app is available for Android phone also and for iPhone also. Android user can directly go to the Google Play Store and download this app Vino, and iPhone user can download the Class Plus app, and you will put one code called KWUDA, organization code KWUDA. This you can add there, and you will be able to access the answer of this May 2023 FR paper. So dear student, my name is Vinod Kumar Agarwal, faculty for FR and SFM for CA final, now teaching this subject for last 20 years, and you can purchase our product FR SFM on our website vino.in or on our app Vino. So now let us start this discussion of FR paper. Question number 4A, very easy question. Same question is in the ICI study material also, and we have also covered in our classes. Autumn Limited has a policy of providing subsidized loan to its employees for their personal purposes. So this is the loan given to employees at discounted rate for their personal purpose. Mrs. Jamabai, wow, a senior HR manager in the company took a loan of 12 lakhs on the following terms. So the loan amount is 12 lakh. Interest rate is 4% per annum. So she will be charged 4% only. The loan disbursement date is 1st April 2019. Principal amount of the loan shall be recovered in 4 equal annual installment. 4 equal annual installment, 12 lakh divided by 4. The principal amount will be recovered 3 lakh rupees commencing from 31st March 2020. First year 31st March 2020. Then the accumulated interest computed on reducing balance at simple interest. Accumulated interest calculated at reducing balance on simple interest. This was an important line. ये जो लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कुछ बच्चे इसमें शायद गलती कर सकते हैं कि इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे. जैसे 12 लाख रुपए लोन है तो फर्स्ट ईयर पे 12 लाख पे आपको 4% कैलकुलेट कर लेना है. बाद में 9 लाख पे 4%, फिर 6 लाख पे 4% और 3 लाख पे 4%. इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, सिंपल इंटरेस्ट रखना है. और ये इंटरेस्ट कब पे होगा? इंटरेस्ट इज कलेक्टेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट आफ्टर कलेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट. हमारे क्लास के नोट्स में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है. आई कैन से 100% क्वेश्चन इज सेम, फिगर्स आर डिफरेंट. तो ये आप जो भी इंटरेस्ट आएगा इसको वापस 3 से डिवाइड करेंगे. विल डिवाइड बाई 3 एंड दैट विल बी रिकवर्ड इन द 5th, 6th and 7th year in equal amount. So that is your cash flow. 3 lakh rupees for first 4 year and then interest for 3 years. Jamabai must remain in service till the principal and interest are paid. The market rate of a comparable loan is 9%. तो ये आपको डिस्काउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ करना है. पीवी फैक्टर भी आपको 9% के हिसाब से ही दिया हुआ है. तो अगर क्वेश्चन में पीवी फैक्टर दिया हुआ हो तो पूरा सम्मान करेंगे. पूरा सम्मान. तुम करोगे सम्मान तो इंस्टीट्यूट भी तुम्हारा सम्मान करेगी. तुम करोगे अपमान तो इंस्टीट्यूट भी तुम्हारा अपमान करेगी.
So under the assumption that no probable future benefits except the return, no probable future benefit except the return of the loan has been guaranteed by the employee, इसका मतलब है कि जो भी आपका स्टाफ एक्सपेंस आएगा उसको आप P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. You are required to provide the journal entry at the time of initial recognition of loan and on 31st March 2020. तो लोन की एंट्री 2 डेट के दिन करनी है आपको, यानी फर्स्ट ईयर का जर्नल एंट्री दिखाना है. लेकिन आपका काम बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया है, प्रिपेयर लेजर अकाउंट पूछा है फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द लोन टिल द फाइनल पेमेंट, यानी 7 साल का लेजर बनाना पड़ेगा. बहुत ही इजी क्वेश्चन लेकिन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कैश फ्लो क्या होगा. तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, प्रिंसिपल अमाउंट 12 लाख है, उस पर 4% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. तो 4% ऑफ 12 लाख 48,000, 3 लाख पेमेंट हो गया. तो प्रिंसिपल बचेगा 9 लाख, प्रिंसिपल माइनस 3 लाख बचे हैं 9 लाख. इंटरेस्ट को बाद में पे करना है. उसके बाद 9 लाख पे 4% 36%, 3 लाख इज द इंस्टॉलमेंट पेमेंट, अमाउंट इज 6 लाख. 6 लाख पे 4% 24,000, इंस्टॉलमेंट पेड 3 लाख, बैलेंस 3 लाख. फिर 4th ईयर में 3 लाख पे 4% 12,000, इंस्टॉलमेंट पेड, बैलेंस 0. तो ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट का टोटल करना है. टोटल इंटरेस्ट इज 1,20,000. क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगले 3 साल इंटरेस्ट को इक्वली पे करना है. तो 1,20,000 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 5th ईयर, 6th ईयर और 7th ईयर में इंटरेस्ट पेड विल बी 40,000. मुझे लगता है जिसने पहले क्वेश्चन अगर नहीं करके गए हो, ये क्वेश्चन हमने क्लास में करवाया है, हमारी बुक में है, रेगुलर नोट्स में है, तो आपको शायद दिक्कत हुई होगी इस लाइन को इंटरप्रेट करने की. तो अब हमारा कैश फ्लो आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट 4 ईयर्स 3 लाख रुपीस है, एंड फ्रॉम 5th, 6th एंड 7th वी हैव टू पे 40,000 रुपीज. सो नाउ विल कंप्यूट द फेयर वैल्यू ऑफ द लोन यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो पहले 1 से 4 3 लाख पे करेंगे. क्वेश्चन में 9% के फैक्टर दिए हुए हैं, 1 + 2 + 3 + 4. पहले 4 साल के फैक्टर को ऐड कर लीजिए, यू विल गेट दिस अमाउंट. मल्टीप्लाई करेंगे 971,910. 5th, 6th और 7th ईयर में हम सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 40,000 रुपीज़. तो आप अपने बुक से, क्वेश्चन बुक से 5th, 6th, 7th का फैक्टर ऐड कर देंगे, यू विल गेट 1.7932. ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है. इसका टोटल करेंगे, दैट गिव्स मी द फेयर वैल्यू ऑफ द लोन. लेकिन एक्चुअल लोन पे हुआ है 12 लाख, फेयर वैल्यू आ रहा है 10,43,638. इसका मतलब है कि इस लोन में कहीं ना कहीं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी छुपा हुआ है. तो कितना पोर्शन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, उसके लिए आप एक वर्किंग बनाएंगे. एक्सेस अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय, लोन अमाउंट 12 लाख, लोन अमाउंट 12 लाख माइनस फेयर वैल्यू ऑफ द लोन, यहाँ से निकाल लेंगे. तो द डिफरेंस इज एक्सेस पेड. इसको हम स्टाफ कॉस्ट ट्रीट करके P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. फर्स्ट ईयर की आपको जर्नल एंट्री पूछी है और बाकी आपको एक लेजर भी बनाना है. तो फर्स्ट एंट्री होगी स्टाफ लोन अकाउंट डेबिट, फेयर वैल्यू ऑफ द लोन लेंगे. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट, ये जो अमाउंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ऊपर वर्किंग नोट में, टू बैंक अकाउंट 12 लाख, टू बैंक अकाउंट 12 लाख. और उसके बाद स्टाफ लोन अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम, इस पे हम 9% के रेट से फाइनेंस इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे. स्टाफ लोन टू फाइनेंस इनकम 9% ऑन ओपनिंग बैलेंस. और जब स्टाफ मुझे, एम्प्लॉय मुझे 3 लाख पे करेगा तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टाफ लोन. और ये जो आपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को यहाँ पर डेबिट किया था उसको ईयर एंड में पूरा P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. एक नोट लिखा हुआ अज्यूमिंग नो प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. और ये जो फाइनेंस इनकम आया है, दैट फाइनेंस इनकम विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
फाइनेंस इनकम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब उन्होंने ना एक लेजर भी पूछा है, तो ये हम बनाएंगे लेजर। मैंने एक नोट लिख दिया है, जिन बच्चों को बाद में लिखना हो लिख सकते हैं। अंडर द अजम्पशन दैट नो probable future economic benefit except the return on loan has been guaranteed by the employee, hence employee benefit expense is fully written off। अब ये लोन अकाउंट बनाया मैंने आपको, 1 साल का मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 1-2 साल का बाकी आप खुद से देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब लोन दिया था हमने 12 लाख, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को हमने हटा दिया वहाँ से 156,362। आप चाहे तो नेट अमाउंट भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो इनका नेट अमाउंट भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको हर साल एक एंट्री करनी है स्टाफ लोन टू फाइनेंस इनकम, और जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा उसका 9% लेना है। फिर स्टाफ आपको 3 लाख पे करेगा बाई बैंक, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है। फिर सेकेंड ईयर में बैलेंस लेकर आना है, इस पे 9% इंटरेस्ट, 3 लाख मिलेगा, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। और इस तरह से जब आप ठीक से अकाउंटिंग करेंगे तो लास्ट ईयर जब आप पहुंचेंगे तो आपका अकाउंट टैली हो जाएगा। लास्ट ईयर में सिर्फ क्या करना, ये जो फाइनेंस इनकम लास्ट ईयर में कैलकुलेट करोगे, इट शुड बी डिफरेंस बिटवीन 40,000 माइनस ओपनिंग बैलेंस, बिकॉज 7th ईयर में हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। आप देखेंगे खुद ब खुद क्लोज हो रहा है, सिर्फ एक 5-10 रुपये का डिफरेंस आएगा, तो उसको फाइनेंस इनकम को राउंडिंग ऑफ कर देना।